بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سردار ایاز صادق صاحب 199 votes۔ میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق تیسری بار اسپیکر قومی اسمبلی منتخب، ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سردار ایاز صادق نے 199 ووٹ حاصل کیے، مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے ملک عامر ڈوگر 91 ووٹ لے سکے۔ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ 197 ووٹ لے کر ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے، مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر کو 92 ووٹ ملے۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب اتوار کو ہوگا، کاغذات نامزدگی کل دن 2 بجے تک جمع ہوں گے۔ جانچ پڑتال کا عمل 3 بجے ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف امیدوار نامزد۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ عمر ایوب بھی میدان میں۔ صدر مملکت کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی کل دوپہر 12 بجے تک جمع ہوں گے۔ جانچ پڑتال 4 مارچ جبکہ حتمی فہرست 5 مارچ کو جاری ہوگی۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پولنگ 9 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات، مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، مولانا عبدالغفور حیدری اور نور عالم خان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انتخاب، صوبائی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ علی امین گنڈاپور 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب، اعتماد پر ارکان سے اظہار تشکر۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کا اپنے خطاب میں حکومتی ترجیحات کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا عوامی فلاح کا ایجنڈا، رمضان پیکج سب کو ملے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم، پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اشیاء کا معیار یقینی بنانے کی ہدایات۔ ہر ضلع کی کارکردگی کا سکور کارڈ سے تعین ہوگا۔ سیاسی حکومت پر الزام تراشی بہت آسان ہے، میرا کوئی فیورٹ نہیں، کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو لکھے خط کی گونج، ارکان نے اقدام کو ملک کے داخلی امور میں مداخلت قرار دے دیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے غیر ملکی اداروں کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا قابل مذمت ہے، ارکان کا اظہار خیال۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 747 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 65,325 پر بند، 34 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 193 فلسطینی شہید، 920 زخمی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کی وجہ سے بحرانی کیفیت۔ خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی عالمی سطح پر مذمت۔
सेहूनी जारहियत में शहदा की तादाद 30,228 हो गई, 31,377 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात के बाद 857 कश्मीरी शहीद, हजारों गिरफ्तार। भारतीय जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के साथ इंसानियत सोज सलूक। हुर्रियत क़यादत का आलमी तंजीमों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू इक़दामात। कलात, मस्तोंग, लसबेला, कोहलू, नसीराबाद, दालबंदीन, खुजदार और डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। गलियात, नारान कागान, सवात, मानसेहरा, अस्तौर, हुंजा, स्कर्दू, वादी नीलम, बाग और हवेली में तेज बारिश की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज, नेवी, एफसी और इंतजामिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल। मुतासरीन में राशन की तकसीम और तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आयरलैंड की पहली कामयाबी। अबूजबी टेस्ट में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम ने तीसरे रोज 111 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। सरदार अयाज सादिक साहब 199 votes। मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ नाज़रीन, खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, जमहूरी तसलसल का एक और मरहला मुकम्मल। कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। सरदार अयाज सादिक स्पीकर जबकि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए और वो स्पीकर मुंतखब हुए। टोटल वोट्स पोल्ड 291, वैलिड वोट्स 290, इनवैलिड वोट 1। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। सुबकदोश होने वाले स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने सरदार अयाज सादिक से हलफ लिया। मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुंतखब होने वाले स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में होने वाले डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में 289 वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने 197 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह से ओहदे का हलफ लिया। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलर की शहजादा गुस्तासिफ और मुस्लिम लीग नून की मुनीबा इकबाल ने हलफ लिया। नुक्ता एतराज पर बात करते हुए MQM के फारूक सत्तार ने कहा कि हम मुल्क के मुआशी मसाइल हल करने के लिए आए हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम के आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं, जिसके लिए अपोजिशन समेत हर सियासी जमात के पास जाएंगे। रुकन असम्बली राना तनवीर अतातार और एहसन इकबाल ने कहा कि ऐवान में हर बात पर एतराज करने वाले जमहूरियत और मुल्क की मीशत को डीरेल करना चाहते हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की जीत को मान रहे हैं और बाकी सूबों में हारने के बाद शोर कर रहे हैं, दरअसल वो मैंडेट को ही नहीं समझते। ऐवान ने सैयद नवीद कमर की सदर और सेनेट के इंतखाबात के लिए असम्बली हाल को पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की करारदाद मंजूर की। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह ने कौमी असेंबली का इजलास इतवार की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब इतवार को होगा।
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری شیڈول کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی کل دن 2 بجے تک جمع ہوں گے، جبکہ جانچ پڑتال سپہر 3 بجے ہوگی۔ قومی اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ڈویژن کے ذریعے ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کل دوپہر 12 بجے تک جمع ہوں گے، جبکہ ان کاغذات کی جانچ پڑتال 4 مارچ کو صبح 10 بجے کی جائے گی۔ امیدوار 5 مارچ دوپہر 12 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے اور اسی روز دوپہر 1 بجے فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پولنگ 9 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، مولانا عبدالغفور حیدری اور نور عالم خان بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت بلدیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے آئینی ترامیم ترجیح ہوں گی۔ دونوں جماعتوں کے قائدین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں معاہدے پر دستخط کیے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ، جبکہ MQM پاکستان کی جانب سے سید مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن نے دستخط کیے۔ MQM پاکستان پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ساجد اختر اپنے اس رپورٹ میں۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد رکن خیبر پختونخوا اسمبلی علی امین گنڈاپور نے ایوان میں 90 ارکان کی حمایت حاصل کی۔ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے عباد اللہ کے حق میں 16 ارکان نے رائے دی۔ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے ارکان نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ اس سے پہلے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے قائد ایوان کے انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں ارکان اسمبلی کو تفصیل سے بتایا۔ انتخاب کا عمل شروع ہوتے ہی لابی نمبر 1 کے سامنے رکھے گئے رجسٹر میں علی امین گنڈاپور کے حق میں ارکان نے ناموں کا اندراج کیا، جبکہ لابی نمبر 2 کے سامنے رکھے گئے رجسٹر میں ڈاکٹر عباد اللہ کے حق میں ارکان نے نام درج کیے۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ 1 رمضان سے صوبے میں صحت کارڈ کی سہولت بحال کر دی جائے گی اور لنگر خانوں کو دوبارہ فعال بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ صوبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سیاسی لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان پل بننے کے لیے تیار ہوں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ بلوچستان اسمبلی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل کرے گی۔ نئے قائد ایوان کے لیے مقررہ وقت تک پیپلز پارٹی کے میر سرفراز بگٹی کے علاوہ کسی امیدوار نے بھی کاغذات جمع نہیں کرائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ بلوچستان اسمبلی 2 مارچ کو نیا قائد ایوان منتخب کرے گی۔ منتخب قائد ایوان بلوچستان کا 20واں وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اسمبلی رولز 15 کے سب کلاز 1 کے تحت عام انتخابات کے بعد اسمبلی کی حلف برداری، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد بنا کسی کارروائی یا بحث کے ایوان نے کسی ایک رکن کو قائد ایوان یا وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ قواعد کے تحت قائد ایوان کے انتخاب کے دن سے 1 روز پہلے کوئی بھی رکن کسی دوسرے رکن کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ نامزد رکن کے کاغذات شیڈول 5 کے تحت سیکریٹری اسمبلی کو جمع کرائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے رول 2 اور 15 کے تحت کاغذات کے مسترد یا منظور ہونے کے بعد اسپیکر نے شیڈول 6 کے تحت انتخاب کرانا ہوتا ہے۔ انتخاب کے بعد گورنر کو اسپیکر کی طرف سے کلاز 19 کے تحت وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 6 خالی نشستوں پر الیکشن 14 مارچ کو ہوگا۔ یہ نشستیں یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری، نثار کھوڑو، جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز بگٹی کے مستعفی ہونے سے خالی ہوئی ہیں۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 3 مارچ تک جمع ہوں گے۔ جانچ پڑتال کا عمل 5 مارچ جبکہ اپیلیں 7 مارچ کو دائر کی جا سکیں گی۔ نظرثانی فہرست 9 مارچ کو جاری ہوگی۔
ارکان سینٹ نے سابق سربراہ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان کو قرض فراہم نہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت کی ہے۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ وقفہ سوالات کے بعد عوامی اہمیت کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ سابق سربراہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے آئی ایم ایف کو پاکستان میں حالیہ عام انتخابات کی شفافیت کی تحقیقات کے بارے میں کہا۔ ان کا یہ اقدام غیر ملکی اداروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ہم سب کو مل کے پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو اور دوسرے اداروں کو کہیں کہ وہ آئیں اور آ کے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، آئی ایم ایف کوئی نہ تو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، نہ ہی پاکستان کی ساورنٹی پہ ان کا ایسا رول ہے جس میں وہ امپوز کر سکیں اپنی ول کو۔ باہر ملکوں کے اداروں کو بلا کے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو پیورلی اندرونی معاملات ہیں ان کے اوپر ان کو دعوت دینا کہ آپ انٹرفیئر کریں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی سینیٹر سعدیہ عباسی کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قابل افسوس واقعے پر ایوان میں بحث کے لیے تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے۔ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اپنے داخلی معاملات کے اندر وہ جماعت جو یہ کہتی ہے کہ غلامی نامنظور، اس کو ہرگز کسی باہر کے ایجنٹ کو اور خاص طور پہ پیسہ دینے والے کو ہمارے سیاسی معاملات میں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ سینیٹر وقار مہدی اور سینیٹر نثار احمد کھوڑوں نے بھی سابق سربراہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مفاد کے لیے ملک کو نقصان پہنچانا قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد افریدی نے وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے سینٹ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے پر ان کے کردار کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ارکان سینٹ نے ڈیسک بجا کر وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی کے کردار کو سراہا۔ سینیٹر ثنا جمالی سمیت دیگر ارکان سینٹ نے ایوان کی توجہ گوادر میں شدید بارشوں کے بعد مخدوش صورتحال کی جانب دلائی۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے متاثرین کو فوری اور بھرپور مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر پلوشہ خان اور سینیٹر عفان اللہ نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کا معاملہ ایوان میں اٹھاتے ہوئے پاکستان سمیت مسلم امہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ارکان سینٹ نے سینیٹر اجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو رہا کیا جائے۔ سینٹ اجلاس اب پیر کے سپہر 3 بجے ہوگا۔ ارسلان اسد کے ٹخیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ لاہور میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں، کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ماہ سیام میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستحق افراد کو رمضان پیکج ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ رمضان پیکج کی اشیاء کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ میں ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ رینڈم چیکنگ کریں گے ڈسپائٹ دوز ملٹیپل لیئرز آف چیکنگ، کہ آپ ایک ایک سیمپل اٹھا کے کہیں ڈبہ کھلوا کے آپ دیکھیں گے اگر 6 چیزیں ہیں، 6 آئٹمز ہیں، 6 کی 6 موجود ہیں، کہ میری کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے بھر میں صفائی ستھرائی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں ہر قسم کی وال چاکنگ کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ 1 مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے، کوئی سڑک ایسی نہ رہے، کوئی محلہ ایسا نہ رہے، کوئی گلی ایسی نہ رہے، کوئی گاؤں ایسا نہ رہے، کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو۔ وال چاکنگز کو آپ نے دیکھنا ہے، انہیں وائٹ واش کرانا ہے، وال چاکنگز ختم کرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ خود شہروں کے ہنگامی دورے کریں گی اور عوام کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیں گی۔ پنجاب کے پہلے مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی کے لیے تجاویز اور سفارشات پر غور کیا گیا۔ پنجاب کے پہلے ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی سازی میں مدد ملے گی اور سماجی تحفظ کے پروگرام میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کی آبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم دیا۔ ڈیٹا بینک میں پنجاب کے ہر فرد اور خاندان کے بارے میں معاشی اور سماجی معلومات کے اشاریے شامل ہوں گے۔ ہر بچے کی پیدائش پر ڈیٹا خود اپڈیٹ کرنے کا طریقہ وضع کرنے کی سفارش کی گئی۔ پنجاب میں باہر سے آ کر بسنے والوں کے اعداد و شمار بھی مرتب کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 13 رکنی ٹیکنیکل ورکنگ گروپ قائم کیا گیا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب کے طلباء کے لیے اعلیٰ برطانوی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने विजन से आगाह किया। डिजिटल पंजाब, IT पार्क, ख़वातीन में तालीम के फ़रोग़, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मरियम नवाज शरीफ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन व अमान की मुकम्मल बहाली, साफ़ पानी की फराहमी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। मुराद अली शाह ने कहा कि समाजी तरक्की के शोबे की तरक्की और गुर्बत का खात्मा, इसके लिए सनती और ज़रई शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी के एजाज़ में वज़ारत पार्लिमानी उमूर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के इनेकाद में भरपूर मुआवनत फराहम की है। उन्होंने कहा कि अवाम की शिरकत के बगैर जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। मुल्क में जमहूरी अमल जारी है और असम्बलियाँ वजूद में आ चुकी हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि नई हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सरदार अयाज सादिक एक ज़ीरक, मामला फहम और बुर्दबार सियासतदान हैं। इनका बतौर स्पीकर इंतखाब इनके तजर्बे और सलाहियतों पर इत्तेहादी जमातों की क़यादत के भरपूर एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि इनकी सरबराही में कौमी असम्बली मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर फाइज हुए हैं। उनकी सियासी जदोजहद के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है ताहिर जाफरी ने, मुलाहिजा कीजिए। शराफत, आजी और इंकिसारी और अवामी खिदमत सरदार अयाज सादिक की सियासत के नुमाया औसाफ हैं। सादा तबीयत और पुरवकार शख्सियत के मालिक अयाज सादिक का शुमार मियां नवाज शरीफ के बाएतमाद साथियों में होता है। 17 अक्टूबर 1954 को लाहौर के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में आंख खोलने वाले सरदार अयाज सादिक ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और कारोबार से मुंसलिक हो गए। बाद में खिदमत खल्क और वतन अजीज की खिदमत का आज़म लिए सियासत के पुरखार रास्ते का इंतखाब किया। वो पहली बार 2002 में लाहौर से कामयाब होकर कौमी असम्बली पहुंचे। ये वो वक्त था जब उनकी जमात आमरीत के दौर में शदीद मुश्किलात का शिकार थी। सरदार अयाज सादिक ने ईवान में अपनी जमात और उसकी क़यादत की भरपूर नुमाइंदगी की। हमारा पुराना हल्का था NA 122, अब वो 129 है। अयाज सादिक साहब उधर से माशाल्लाह 4 मरतबा MNA हुए। हल्का जो है ना वो आज भी उनको ना याद करता है एक अच्छे इंसान के तौर पे, अच्छे सियासतदान के तौर पे और अच्छे एक एज ए हमदर्द के तौर पे। और उनका जो स्पीकर बनना ये तमाम पार्टियों के लिए एक अच्छा फैसला है। सरदार अयाज सादिक दूसरी बार 2008 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ हल्के के अवाम के मसाइल हल करने पर वक्फ कर दी। 2013 के आम इंतखाबात में अयाज सादिक एक बार फिर कामयाब हुए और स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने बतौर स्पीकर ईवान में जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाया और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चले। 2018 के आम इंतखाबात में भी कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हालिया आम इंतखाबात में भी वो अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए। उन्हें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर नामजद किया है। धीमे लहजे के हामिल सरदार अयाज सादिक के मुखालफिन भी उनकी सियासी बसीरत और फहम फरासत के कायल हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि सरदार अयाज सादिक बतौर स्पीकर गैर जानिबदाराना अंदाज से अपना किरदार अदा करेंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली के नामुंतखब डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ताल्लुक शहीद बेनज़ीराबाद से है। इनके सियासी सफर की तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 27 अक्टूबर 1959 को सिंध में पैदा हुए। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह सुबह सिंध के एक सियासी और जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो मरहूम सैयद गुलाम शबीर अहमद शाह के फर्जंद हैं। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह शहीद बेनज़ीराबाद जिले के ताल्लुका सकरंड के गाँव मेहराबपुर के रहने वाले हैं। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने अपना सियासी कैरियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी प्लेटफॉर्म से शुरू किया। अपने वालिद के इंतकाल के बाद सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA 214 नवाब शाह से पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि 2008 के आम इंतखाबात में दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2013 के आम इंतखाबात और 2018 के आम इंतखाबात में भी इसी हल्के से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। हालिया इंतखाबात में सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह हल्का NA 208 शहीद बेनज़ीराबाद 2 से 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर 5वीं बार कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के तौर पर नामजद किया, जिसके बाद वो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अरकान असम्बली ने मुल्क व कौम को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने का अज़्म जाहिर किया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। कौमी असम्बली की नई तश्कील, नए चेहरे और नया अज़्म,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में अरकान ने भरपूर जोशो खरोश से हिस्सा लिया। कहते हैं हुकूमत की तश्कील मुकम्मल होने के बाद अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, हर किस्म के खात्मे के लिए नई हुकूमत मफाहमत के साथ, यकजहती के साथ, पूरी कुव्वत के साथ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म काम करेंगे। सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है कि हम आगे मफाहमत के साथ चलें, आवाम के मसाइल हल करें। नौजवानों को इंगेज करना होगा और ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। हल्फ उठा लिया है तो उस हल्फ की पासदारी हम सब पे लाज़िम है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे बाहर निकाल सके। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज होगा, मिलकर ही उनसे निपटा जा सकता है। जो मुल्क के हालात हैं उसमें हमें अपोजिशन के लिए भी दरवाजे खोलने चाहिए और मिल के चलना चाहिए। हमारा घर यही है, इसी में रहना है तो इसको अच्छा बनाना लाजमी है। अच्छा कैसे बनेगा? आम आदमी के लिए अच्छा बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोच के साथ आपको ये हुकूमत चलानी भी पड़ेगी और इंशाल्लाह चलाएंगे भी। पाकिस्तान के अवाम के एतमाद को कायम रखना होगा, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत ये कांटों की सेज है, ये कोई आसान रास्ते नहीं है। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी और सियासी सफ़र में नहीं देखा है। अब सोचना होगा कि अब आगे किस तरह बढ़ना है। अरकान कौमी असम्बली का मानना है कि मसाइल जितने भी गंभीर क्यों ना हो, पार्लियामेंट में उन्हें हल करने की भरपूर सलाहियत है और सियासी इख्तलाफात इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख और अवामी रवाबित पर मबनी है। सकाफती और इक़्तिसादी शोबों में दो तरफ़ा ताआवुन मजबूत बनाना होगा। सदर मुमलिकत ने ये बात आज़रबाईजान चैम्बर ऑफ अकाउंट्स के चेयरमैन वोगर गुल महमदौफ की सरबराही में वफ्द से कही, जिन्होंने ऐवान सदर इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि दो तरफ़ा ताआवुन खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के आला ऑडिट इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। बेहतरीन ऑडिट के तरीके एक दूसरे के साथ शेयर करने से शफाफियत और मालियाती एहतसाब बढ़ाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन चैम्बर ऑफ अकाउंट्स ऑफ आज़रबाईजान ने सदर मुमलिकत को दोनों मुल्कों के सुप्रीम ऑडिट इदारों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त के बारे में बताया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता माह के इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम इलियोव को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इनकी निगरानी में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 747 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 65,325 पर बंद हुआ। तफसील जानेंगे जीशान अहमद खान से। कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स बुलंद सतह पर ट्रेड करता रहा। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तश्कील का अहसन अंदाज से मुकम्मल होना और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के मस्बत असरात स्टॉक मार्केट पर पड़ रहे हैं। सरमायाकार पर उम्मीद है कि 100 इंडेक्स आइंदा दिनों में मजीद बुलंदी की जानिब गामजन होगा। SIFC पे बहुत काम हो रहा है और उसके साथ FDI भी जुड़ा हुआ है और उसकी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हो रही हैं, तो जल्दी पब्लिश करते हैं, उसमें बताते हैं कि प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो ये एक बहुत खुशाइन कदम है। IT का सेक्टर उठा के देख लें, इमेंस पोटेंशियल है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूटिलाइज करें, 65% आपका जो यूथ है वो पाकिस्तान में मौजूद है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हजम की शरह 1.14% रही, जबकि स्टॉक मार्केट में 34 करोड़ से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 13 अरब रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक एक्सचेंज में 172 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 156 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, केमिकल्स और इंश्योरेंस से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के सौदे नुमाया रहे, जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कुछ बात करेंगे इसराइली जारहियत की। नाज़रीन, गजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। सेहूनी फौज ने जनूबी इलाके में बेघर होने वाले अफराद की पनाहगाह को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद लुक़मा जल बन गए। 24 घंटे में इसराइली दहशतगर्दी में 193 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 920 जख्मी हुए। शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 30,228 हो चुकी है, जबकि 31,377 जख्मी हैं। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत की वजह से बहरानी कैफियत है।
वजारत सेहत का कहना है कि शुमाली इलाके में खुराक और पानी की कमी की वजह से अमवात हो रही हैं। इसराइली फौज की जानिब से गुज़श्ता रोज़ खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले की आलमी सतह पर मज़म्मत की जा रही है। इस वाक़े में 112 अफराद शहीद और 750 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फ्रांस ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। कोलंबिया ने गज़ा में इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग को नस्ल कुशी करार देते हुए इसराइल से हथियारों की खरीदारी रोकने का ऐलान किया है। सदर गुस्ताओ पेट्रो ने इसराइली हुकूमत को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इस इक़दाम से होलोकॉस्ट की याद ताज़ा हो गई है। कोलंबिया ने गजा पर निहत्ते शहरियों पर बमबारी पर एहतजाज करते हुए इसराइल से अपना सफीर भी वापस बुला लिया था। यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला वैन वेंडरलेन ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खुराक के मुंतज़िर शहरियों पर हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अमरीका ने पहली बार गजा पर इसराइली हमलों में हलाकतों को तस्लीम किया है। कांग्रेस की समाअत के दौरान वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अब तक गजा में 25,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से इसराइल को 21,000 से ज़्यादा ऐसे गोले फराहम किए गए हैं जो अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल हैं। और नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से अब तक काबिज भारतीय फोर्सेज ने 28 कम उम्र लड़कों समेत 857 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की तरफ से बेगुनाह कश्मीरियों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 2,416 अफराद शदीद जख्मी हुए, 22,490 गिरफ्तार, जबकि 1,119 घर और दीगर इमारतें तबाह की गईं और 133 कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने ज़कूरा कत्लेआम के शहदा की 34वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि इस तरह के कत्लेआम भारत की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी नस्ल कुशी की मुहिम का हिस्सा हैं। काबिज भारतीय इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर श्रीनगर में घर में नजरबंद करके जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने नामवर कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को श्रीनगर में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मकबूजा इलाके की हाईकोर्ट के अहकामात पर 5 बरस की गैर कानूनी हिरासत के बाद मंगल के रोज रिहा किया गया था। भारत की काबिज फौज के हाथों रियासती दहशतगर्दी के दौरान मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कत्लेआम के 34 साल मुकम्मल हो गए। 1 मार्च 1990 को श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज के लिए जाने वाले 2,000 से ज़ायद कश्मीरी मुजाहिरीन पर भारतीय फौज ने फायरिंग की। तेजपुरा बाईपास पर मुजाहिरीन की 2 बसों पर भारतीय फौज की फायरिंग से 21, जबकि ज़कूरा चौक में 26 मुजाहिरीन शहीद हुए। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। कत्लेआम के बाद जख्मियों को अस्पताल ले जाने वालों पर भी फायरिंग की गई। मुजाहिरीन श्रीनगर में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत की तरफ से UN करारदादों की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। इस वाक़े में मजमूई तौर पर 47 कश्मीरी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भी ज़कूरा तेजपुरा सानहे के मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भारत में किसानों का देहली चलो मार्च 17वें रोज भी जारी रहा। मार्च में शामिल किसान 13 फरवरी से हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं। हजारों किसान दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा सरहद पर जमा हैं। हरियाणा पुलिस की जानिब से किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद के कई वाक़यात भी सामने आए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों की धमकी भी दी है। सड़कों की बंदिश की वजह से पंजाब को डीजल और LPG की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हो रही है। मार्च के बायस हरियाणा और अम्बाला के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। समूह किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने शंभू और खनौरी में सरहदों पर एहतजाज की क़यादत करते हुए सिलसिलावार एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया है। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की कॉल दे रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की जानिब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पर पाबंदी आयद करने के फैसले को मुस्तरद करता है। भारत के हालिया फैसले से 8 कश्मीरी जमातों पर पाबंदी आयद की गई है। भारत फौरी तौर पर कश्मीरी जमातों से पाबंदियां उठाए। दफ्तर खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के बयानात खित्ते का माहौल ख़राब करने की कोशिशें हैं। ये तारीखी हकीकत है कि जब भी भारत ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तर्जुमान ने इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन में खुराक की फराहमी में मसरूफ़ अफराद के कत्लेआम की भी शदीद मजम्मत की। गुज़श्ता साल मार्च में पेश आने वाले साइबर सिक्योरिटी वाक़े की तहकीकात के लिए नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने 30 अक्टूबर को मुश्तरका तहकीकाती टीम के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम की सरबराही में JIT के क़याम की मंजूरी दी। JIT ने तहकीकात के बाद
वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तजवीज़ करदा इक़दामात की रोशनी में इक़दामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। इन इक़दामात में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ महकमा जाती और इंज़िबाती कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। ये इक़दामात नादरा की खिदमात में बेहतरी के साथ डेटाबेस की मयारी सिक्योरिटी यकीनी बनाने में मददगार होंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सदारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरबराह पाक बहरिया ने मश्क सीज पार्क के कामयाब इनेकाद पर काविशों को सराहा। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। नेवल चीफ ने गवादर में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी की ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताउल्ला तारड़ पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बारिशों से होने वाले नुकसान पर नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इंतज़ामिया मुतासरीन की इमदाद के लिए भरपूर काम करेगी। कुछ मुल्क में जो एक बारिशों का सिलसिला चला है, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गहरी तशवीश है उसके ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जहाँ जहाँ है वो मुतासरीन के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी हिस्सा लेगी, और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो उसमें तेज़ी आएगी, और इस सूरत हाल से जो लोग मुतासरा हैं उनके लिए दुआ गो भी हैं, और ये नामजद वज़ीर आज़म का बड़ा इस चीज़ पे बड़ी गहरी तशवीश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल है। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद समेत नशेबी इलाकों में बारिश और वादी नीलम, वादी लीपा और पुंछ डिवीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी है। वादी नीलम और लीपा के इलाकों में बर्फबारी के ताज़ा सिलसिले के बायस सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बारिश और बर्फबारी से शहरात की बंदिश के बायस लोगों को आर्जी तौर पर दिक्कत का सामना है। बहुत अच्छी बात है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन ये है कि पिछला जो हमारा जो टाइम गुजरे इसमें काफ़ी अर्सा खुश्की रही है। बारिश और बर्फबारी के बायस वादी नीलम और वादी लीपा को दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली शाहरात लैंड स्लाइडिंग की जद में हैं। शदीद मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा शाहरात की जानब से फील्ड स्टाफ और मशीनरी हसास मकामात पर मामूर करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी दोपट्टा, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाजरीन, तूफानी बारिशों से मुतासिरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात कुर्रार्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। बलूचिस्तान भर में हालिया तूफ़ानी बारिशों के तसलसल ने इंसानी बका के लिए पेचीदा मसाइल को जन्म दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज है। तमाम सरकारी, नीम सरकारी तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। खारान में कच्चे मकानात मुनहदम होने से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि गवादर, तुरबत, गडानी और दिगर साहली इलाकों में 72 घंटों से जारी रहने वाली बारिशों ने शहरी आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया है। पशीन किला अब्दुल्ला, हरनाई किला सैफुल्ला, कोहलू, नौकुंडी, पंजगूर में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला थम न सका। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। बारखान, जोब और सीबी में भी गरज चमक के साथ बारिशें जारी हैं। सैलाबी रेले से मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। गवादर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान, ज़िला इंतज़ामिया, GDA और PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमी तग़य्युरात के पेश नज़र तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेंज इमरजेंसी रिस्पांस टीमें शहर में नकासी आप के लिए कोशा हैं। इंतज़ामिया की जानिब से टैंकर्स और पंपिंग मशीनें ड्रेनेज सिस्टम की बहाली में मसरूफ़ हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान से मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम कराची में दाखिल होने से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। सिंध हुकूमत के बर वक्त इंतजामात से शहर में जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। मज़ीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا اور کہیں تیز اور کہیں رمجھم برسی۔ بارش کے باعث موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش پی اے ایف فیصل بیس پر 14 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کیماڑی میں 13 ملی میٹر، ناظم آباد میں 12.5 ملی میٹر، جبکہ سرجانی میں 12.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارش کا یہ سلسلہ آج رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں پچھلے 3-4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، وہی بادل یا وہی سسٹم لو پریشر ایریا اب بڑھتا ہوا سندھ پہ داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں بھی ابھی بارش ہوئی ہے، یہ جاری رہ سکتا ہے رات گئے تک، اور کل سے پھر کلیئر ہو جائے گا کراچی میں ویدر۔ البتہ ایسٹرن سندھ جو ہے تھرپارکر ڈسٹرکٹ، عمرکوٹ اور برسانگر، خیرپور وغیرہ ان ایریاز میں کل صبح کے بعد بھی یعنی کل دوپہر تک چل سکتا ہے یہ سلسلہ۔ ممکنہ طور پر بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی، جبکہ تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے متعلقہ عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں آدھے دن کی چھٹی کا بھی اعلان کیا تھا۔ بارش کے دوران بلدیاتی اداروں کی جانب سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے دن بھر پمپنگ مشینیں مختلف جگہوں سے پانی پمپ کرتی رہیں، جس کے باعث شہر میں پانی زیادہ کھڑا نہ ہو سکا اور سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول کے مطابق چلتا رہا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے جو 3 مارچ تک 24 گھنٹے کام کرے گا۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے شہروں میرپور خاص اور تھرپارکر میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ 3 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تفصیل دیکھیے حمزہ زمان کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات خیبر پختونخوا کے مطابق پشاور سمیت صوبے کے دیگر اضلاع چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، کرک، بنو، پاڑا چنار، ڈی آئی خان، ہری پور، ابٹ آباد میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا نیا سلسلہ 3 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاڑا چنار میں 29، تیرا خیبر 21، بنو 12، چترال 14، پشاور 5، تخت بائی اور ملم جبہ میں 9، جبکہ باجوڑ اور ڈی اے خان میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بارش سے اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا ہے۔ مراسلے میں چھوٹی باری مشینری کی دستیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ روڈ لنکس کی بحالی میں چوکس رہے، سڑک کی بندش کی صورت میں ٹریفک کے لیے متبادل راستے فراہم کیے جائے اور حساس علاقوں میں صوبائی اور قومی شاہراہوں پر مسافروں کو پیشگی خبردار کیے جائے۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے ترجمان کے مطابق صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں اور برف باری سے کسی بھی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ حمزہ زمان، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو 3 مارچ تک جاری رہے گا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بارش کا سلسلہ صبح سویرے شروع ہوا جو مختلف علاقوں میں وقفے سے جاری رہا۔ بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا۔ بارش تھمنے کے باوجود لاہور میں بادل چھائے رہے۔ سرمئی بادلوں کی اوٹ سے سورج کی آنکھ مچولی دن بھر جاری رہی۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ گردونواں میں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک لاہور میں اسی طرح ہلکی، جبکہ صوبے کے باقی علاقوں میں چند ایک مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔ اس میں پورے پنجاب میں بارشیں ہیں۔ لاہور میں ماڈریٹ قسم کی بارش ہے، جو نیچے علاقے ہیں سدرن سائڈ وہاں بھی ماڈریٹ قسم کی بارش ایکسپیکٹڈ ہے۔ البتہ جو اوپر کے علاقے ہیں جس میں سیالکوٹ، گجرانوالہ، جہلم اور پنڈی، اسلام آباد، وہاں پہ شدید بارش کے امکانات ہیں۔ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کل رات سے ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ بارشوں کا یہ نیا سپیل 3 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے بعد موسم میں کافی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، بحریہ اور سول انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تفصیل انیس اوان سے۔
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला एक रोज तक जारी रहेगा, जिससे नदी नालों में तुग़यानी और पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। मरी में हालिया बारिश और बर्फबारी के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सियाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा के गिरदो नवाह में शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज का बर्फ में फंसे मुसाफरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी कैंप से खाने पीने की अशिया और दवाएं मुहैया करने के साथ साथ भारी मशीनरी की मदद से सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। बलोचिस्तान में बारिशों से मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज ने गवादर, सरबंदर और जीवानी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम किए हैं। मेडिकल कैंप्स में बारिशों से मुतासरा 1200 मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाएं फराहम की गई। मुवासलात के बुनियादी ढांचे को फाल करने और मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की तरफ से मुतासरा इलाकों से पानी निकालने और सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला गवादर के 680 खानदानों में 20 टन राशन भी तकसीम किया गया। गवादर में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया की कश्तियां, गोताखोर और मोबाइल मेडिकल टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन को खाने की अशिया, पीने का पानी और राशन फराहम कर रही हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम और गोपस में -3, अस्तोर -2, जबकि हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 13, कराची 18, पेशावर 10, जबकि कोयटा में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पाक फौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। यूथ कन्वेंशन में शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन में नौजवान नस्ल को इलाकाई सूरत हाल, दरपेश मुश्किलात, देरपा क़याम अमन और ज़ेर अमल तरक्याती मनसूबों से रूशनास करवाया गया। नौजवानों और ख़वातीन ने पाक फ़ौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाक फ़ौज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाई, जो एजुकेशन फील्ड में तब्दीली लाई, इसके साथ साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट में जो तब्दीली लाई, हम इस पर पाक फ़ौज के बेहद मशकूर हैं। जो हमारी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी सेहत, एजुकेशन और पीस प्रमोशन के लिए जितना सब कुछ कर रही है, उन सब के लिए बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो इस सब कामों को कंटिन्यू रखे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। अरकान सेनेट जो मुख्तलिफ असम्बलियों में मुंतखब हो चुके हैं, उनकी सेनेट की खाली नशिस्तों की दरख्वास्तें 3 मार्च तक अरसाल की जाएँ। दरख्वास्तें सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम होंगी। दरख्वास्तों के साथ 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मुंसलिक किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से डायरेक्टर जनरल ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा शहजाद नईम ने मुलाकात की। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने गवर्नर को पख्तूनख्वा हुकूमत के 34 महकमों के अखराजात और महसूलात पर मुश्तमिल सालाना ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पेश की, जिनमें 57 गैर मुल्की इमदादी मनसूबों, सेहत सहूलत प्रोग्राम और गैर मुल्की कर्जों के ऑडिट रिपोर्ट्स शामिल हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबे के मुश्किल हालात के बावजूद मालियाती निज़ाम से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट्स को बरवक्त पेश करने को सराहा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डेप्यूटी ऑडिटर जनरल सेंट्रल तारिक बशीर चट्ठा की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। डेप्यूटी ऑडिटर जनरल ने गवर्नर को हुकूमत पंजाब के सालाना अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पेश की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि सरकारी महकमों में शफाफियत और गवर्नेंस बेहतर करने में ऑडिटर जनरल के महकमे का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारी इदारे जिनका किसी वजह से ऑडिट नहीं हो सका, उन्हें भी इस सिस्टम में शामिल करना चाहिए। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है।